So cutting of trees is an example of chemical change, because the entire chemical reactions, because in 9th class also you came to know that trees are also made up of cells and various metabolic activities are taking place in the cells. ठीक है, तो आपने कोई भी living part tree का अगर अलग कर दिया है तो that will be a chemical change, because for that perspective उस particular चीज की perspective में आप देखो तो it will be you can say that all chemical reactions, all metabolic activities will stop after cutting it. Now I'm asking you, cutting of vegetables to form a salad. Vegetables को cut कर रहे हैं आप एक salad बनाने में. You are only cutting vegetables in variety of shapes to form a salad. What kind of change it is? Ma'am, physical change. Physical change. Physical change, because salad otherwise can be prepared by cooking also, but I have asked you to, I mentioned this, that only we are cutting vegetables to form salad, then it will be a physical change. But if we are cooking those vegetables or we are adding a certain heat to that, so certainly applying heat will change the scenario, like it will change the conditions which you are providing to that particular vegetables, because आपने temperature change किया, heat किया, तो some of these metabolic activities can stop. Otherwise तो vegetables वैसे ही cut down हो चुकी थी, तो उसमें उतनी activities तो नहीं थी, but still आप उसको further और cook करते हो तो उसके अंदर जो मतलब chemicals present है, they will change their chemical nature. उनका जो properties है वो change हो जाएंगी. Some may start decomposing at high temperature. तो nutritional जो values है वो change होनी start हो जाती है when we cook, and when we overcook a particular vegetable, then obviously we are going to destroy all those nutritional benefits of. But it's not that कि cooking is a bad thing. We should not eat rather everything raw, तो हम नहीं खा सकते. But cooking up to a certain extent temperature is always recommended. In order to keep the nutritional benefits of the food. But that is another thing that is not in our syllabus. I am telling you, cooking of vegetables to prepare something cooked is a chemical change, but just cutting them in order to form fruit salad, vegetable salad is a physical change. अब इसके अलावा कुछ और चीजें, आप milk से curd बनाते हो घर में, curdling of milk, what kind of change? Chemical change. Chemical change. Chemical change. During that curd formation, lactose sugar present in milk, जो sweet taste हल्का सा milk में आता है lactose sugar की वजह से, that starts converting into lactic acid, and acids are sour to taste. तो वो sour taste जो आपको मिल रहा है curd में, that is due to acid. तो sugar से acid में conversion हुआ, fermentation हुआ, that formation is called chemical. तो वो एक chemical change है. तो एक chemical change को अब हमें, ये तो हमें पता लग गया कि chemical change का मतलब chemical properties का change होना है. अगर एक चीज, दो तीन चीजें आप मिक्स कर रहे हो, उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर दे रहे हो कि वो उसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, देन वी से इट इज अ केमिकल चेंज. बट अब एक केमिकल चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वहां पर हमें कुछ ऐसी तो चीजें दिखेंगी आपको कि वो आप उसको जज कर पाओ कि इट इज अ केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम शोइंग यू वन एक्टिविटी. हियर आई हैव टेकन वाटर बीकर. ओके, अब यहां पर मैंने इसमें एक सॉल्ट जिसमें एंड इट गेट मिक्स्ड विद वाटर. थोड़ा सा टाइम लगता है एक सॉल्ट को डिसॉल्व करने में. तो वी आर मिक्सिंग इट टू डिसॉल्व. अब ये डिसोल्यूशन जो था, इसमें आप इसको फर्दर इवेपोरेट करवा के या क्रिस्टलाइजेशन करवा के इसको वापस सेपरेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इस सॉल्यूशन में से. तो दिस इज नाउ अ कलरलेस सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर का जो कलर था उसमें अभी कोई चेंज नहीं आया, कलर इज सेम. इफ आई टच, अभी आप लोग टच नहीं कर पा सकते हो, तो राइट नाउ मतलब कोई मुझे ऐसा चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ कि मैं इसको क्लासिफाई कर पाऊँ, ना कोई बबल फॉर्मेशन हुए. तो वी कैन से दैट अभी हम जज कर सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ physical change, because nothing new is formed. जो water जैसा था वैसा ही है. Now I am adding one more thing to it, which is actually lead, and I am adding it. Actually solutions बना के भी mix कर सकते हो, but I am adding in that way.
Actually, this has changed the color of water. Initially, water was transparent. Actually, salt को मेरा if you find it, can you see the change in color here? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Initially it was transparent like water, but now it has changed the color. तो ये जो color change हुआ है, somewhere हम judge कर सकते हैं कि if the color is changing on mixing two different type of metal, then it can help us to know about a chemical change. So first characteristic जो आया हमारे पास change in color. आप अपनी सराउंडिंग्स में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो जिसमें आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाता है. समटाइम आपने कोई कुक फूड आइटम फ्रिज के बाहर रख दिया ओपन में एंड भूल गए आप उसको 3-4 दिन और वेदर जो है क्वाइट ह्यूमिड है, तो विद इन 3-4 days it start decomposing, some bacterial attack will take place and it will change the color and smell of that particular substance. तो चेंज इन कलर विल बी ऑब्जर्व और आपको पता लग जाएगा कि कुछ इसमें केमिकल चेंज हो गया, खराब होना स्टार्ट हो गया. तो केमिकल चेंज का एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर. दूसरा होगा इवन रस्टिंग. रस्टिंग जो आप नॉर्मल आयरन ऑब्जेक्ट मार्केट से न्यू परचेज जब करके लाते हो, इट इज shiny silvery appearance of any iron object if it is not painted over there, but as soon as it is kept open in air, within few days you can say it starts losing its shine, and within few weeks or months depending on the humidity level in environment, it will change the color to you can say reddish brown. That means rusting of iron takes place, because if it is not protected by any method, then it will get rust. So rusting is also chemical change because the color of iron changes from silvery, shiny silvery gray to reddish brown. So change in color can be observed. Second होता है change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है इनिशियली आपने जब चीजें मिक्स की थी रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर अगर उनको मिक्स करते ही बहुत ज्यादा अपने आप ही हीटअप हो गई चीजें. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ, सपोज व्हाइट वॉशिंग इज गोइंग ऑन एट योर होम एंड व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे वो व्हाइट कलर के जो स्टोन यूज करते हैं दैट इज क्विक लाइम, और उसको नॉर्मली हम चूना भी कहते हैं. तो वो क्विक लाइम को मिक्स करते हैं वाटर के साथ. मतलब क्विक लाइम लिया एक बकेट में या व्हाटएवर इज द कंटेनर दे आर यूजिंग एंड दे ऐड वाटर टू इट. एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग on when water is added to quick lime, large amount of heat is evolved. Even वो आपको वेपर्स दिखते भी हैं, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग. और साथ में जो टेम्परेचर उस कंटेनर का, इफ इट इज अ मेटालिक कंटेनर, इट विल गेट हीटेड अप. मतलब आपने एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड नहीं की, बट टेम्परेचर इटसेल्फ इज राइजिंग in the process. Then you can say heat is evolved out by the substance. So change in temperature can be observed in two different ways. Either the heat evolved or टू चेंजेस हमें क्या ऑब्जर्व होंगे, लाइक दो ही तरह से हीट में चेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज कब होगा, या तो कोई चीज नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ठंडी हो गई अपने आप, या अपने आप गर्म हो गई. दोनों चीजें हो सकती है ना. तो इफ द रिएक्शन मिक्सचर या जो भी मिक्सचर आपने बनाया वो अपने आप हीट इवॉल्व कर रहा है, टेम्परेचर राइज अप हो गया, दैट केस इट विल बी सेड टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. में थोड़ा सा अभी आपको ये टर्म बता रही हूँ, विल कम टू नो अबाउट दीज टर्म्स लेटर इन दिस चैप्टर. एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, अपने आप चीजें अपने अंदर से हीट रिलीज करती हैं. एंड इफ रिएक्शन मिक्सचर गेट्स कूल्ड डाउन, अगर चीजें अपने आप ठंडी हो जाती हैं, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, अपने रूम टेम्परेचर पे ही रखा है, एंड इफ यू हैव मिक्स्ड सर्टेन टू थिंग्स एंड टेम्परेचर गेट्स डाउन, देन यू कैन से heat is absorbed by the surroundings in order to mix those things, and the reaction mixture जो मिक्सचर आपने बनाया वो ठंडा हो गया. तो दोनों ही चीजें टेम्परेचर में आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हो. आफ्टर दैट प्रोसेस यू नीड टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर अगेन. इफ यू फाइंड अ चेंज इन टेम्परेचर, यू कैन से दैट विल बी
that can be a characteristic of chemical change. ठीक है? Thirdly, evolution of a gas. If you are mixing two substances and bubble formation takes place, bubble formation generally तब होते हैं जब कोई गैस escape करती है किसी भी चीज में से, तो bubble formation can you can say help to observe us evolution of any gas. तो whenever a gas is evolved, तो means एक नया substance बना है तभी gases evolve हुई. For example, when you burn any substance, आप burn करते हो, burning क्योंकि आप dry चीजों को कर रहे हो तो वहां पे आपको bubbles तो observe नहीं होंगे, but you will see that smoke coming out of that. तो smoke में क्या है, जो gases release हो रही है, carbon dioxide. Otherwise carbon dioxide is a colorless gas, you cannot observe the color of that gas, but carbon dioxide is always there when we burn any substance. That can be tested by some other test. Lime water में pass कर दो तो lime water को वो milky कर देती है. ये आगे further testing आप कर सकते हैं कि हमें अगर confirm करना है कौन सी gas evolve हुई है. But otherwise in a liquid medium अगर कोई gas evolve होती है तो bubble formation always takes place. So you can come to know about that evolution of a substance, gases form or a gas is produced in the reaction or the process, hence the process is a chemical change. अब एक चीज और अगर हम ऑब्जर्व करें, I am showing this to you again. अभी ये थोड़ा सा आपको इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, बट अगर आप सामने आप फिजिकली इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे दो लेयर्स ही बनी है. कुछ जो सब्सटेंस है ये व्हाइट पाउडर, ये सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया है और बाकी का जो वाटर है अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा. तो इस तरह के कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, इन विच सॉलिड सब्सटेंस ऐसा बनता है रिएक्शन के अंदर जो मिक्स नहीं हो पाता पूरा, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. एंड अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, ये देखो पूरा वापस व्हाइट हो जाएगा, बट इफ आई लीव इट फॉर सम टाइम अगेन दिस इनसॉल्युबल सॉलिड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. ठीक है? तो दिस सेटलिंग डाउन ऑफ दिस सॉलिड इज बिकॉज ऑफ दैट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है, और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज प्रेसिपिटेट. तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, क्लियर? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इफ यू फाइंड समथिंग, जैसे मैंने पहले मिक्स किया था वाटर में, एक सॉल्ट डाला था तो इट वाज लाइक कलरलेस सॉल्यूशन, नथिंग वाज सेटल्ड डाउन, नथिंग change was observed there. But when I added क्योंकि dissolve करना physical change होता है, physical change में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी. But when you mix two things together, water में उनके solutions बना के भी आप mix कर सकते हो. तो on mixing if some changes are observed, कि आपको solution का color change मिला, solution में कोई चीज settle हो गई नीचे, bubble formation हुआ, heat changes observe हुए, ये सारी चीजें आपको क्या बताएंगी कि कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है. और लास्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में चेंज होना. फिजिकल स्टेट हमने पढ़ी है 9th में. 3 स्टेट्स में जनरली मैटर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. तो इफ यू ऑब्जर्व एनी फिजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो यू, व्हेन वी बर्न हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को कंबाइन करके हीट करते हैं या इसको एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, व्हाट फॉर्म्स? लिक्विड वाटर इज फॉर्म. लिक्विड वाटर जो आप यूज कर रहे हो ना घर में, अगर हमें उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना है, अदरवाइज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग वाटर इन लैब्स और इन इंडस्ट्रीज बिकॉज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन से इट इज अ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है? तो prepare करना expensive, but we can prepare. If chemically it is asked how to prepare water, so we can burn hydrogen gas in oxygen by with the help of an electric spark. एक इसको electric spark देना पड़ेगा, चिंगारी देनी पड़ेगी electricity use करके, then it will burn to form water. और ये liquid water वहाँ form होगा. लिया गया था हमने दोनों gases भी. So you can say when gaseous states, you have started with gaseous states, but the product obtained is in liquid form, means change in physical state. So if you find any of these characteristics, some chemical reactions may have all of these,
but some may have only one or two, some may have just one, some may have three. जैसे अभी हमने जो एक्टिविटी किया उसमें हमारा कलर चेंज भी हुआ था और उसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी मिला था। तो दो चीजें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। तो it means these are 5 basic characteristics to identify a chemical change in your surroundings, but it is not compulsory that all these 5 changes will be observed over there. ठीक है? You can find any of them. Now I am going to ask you one example for each of these. These examples are given in your book itself, but still from your daily life, if you find something relevant to this, you can raise your hand or you can unmute yourself. First one is change in color. अभी जो मैंने एक्टिविटी किया, मुझे कोई केमिकल यूज वाली एक्टिविटी आपने नहीं बतानी है, जस्ट फ्रॉम डेली लाइफ इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दैट, चेंज इन कलर। कभी भी लाइफ में कहीं कोई ऐसा चेंज ऑब्जर्व किया हो जिसमें कलर चेंज हो जाए? हम चेंज इन स्काई, चेंज इन स्काई change in sky effect की वजह से भी आता कलर चेंज, but still we can say something, some pollutants can change. जब fog formation होती है then it is a chemical change. Good. Something else? मैम rusting of iron nail. रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको रस्ट का जो कलर है, साथ साथ आपने सिर्फ आयरन की रस्टिंग ऑब्जर्व की। आपके घर में सिल्वर आर्टिकल्स तो बहुत लोगों के पास होते हैं, सिल्वर कॉइन्स कभी देखे हो, प्योर सिल्वर कॉइन्स, when you purchase them from market na, they are shiny silvery color, but if you ask your mother to show some older coins, आपके घर में होंगे प्रेजेंट पुराने सिल्वर कॉइन्स, आप उनको निकालते कैसे हो जाते हो सिल्वर कॉइन्स? What is the Change in color while cooking vegetables. cooking vegetables? मैम rotting of fruits. Yes. Rotting of fruits. रॉटिंग ऑफ कलर के, इवन फ्रूट को कट करके, आप एप्पल को कट कर रहे हो, कट करने के बाद उसमें ब्राउनिश कलर आ जाता है, दैट इज बिकॉज ये केमिकल चेंज के थ्रू ही आता है। उसमें जो फेरस आयंस है देट आर कन्वर्टिंग इनटू फेरिक। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो जहां चेंज कलर हो रहा है, दैट इज काइंड ऑफ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। एक तो मैंने अभी बताया था आपको, जब हम व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है। And when ice is outside, वो तो आइस मेल्ट हो रही है, दैट इज नॉट अ चेंज, वो फिजिकल चेंज है बेटा, मेल्टिंग। देखो एक चीज मैं यही आपको बता रही थी कि चेंज इन टेम्परेचर सिर्फ अकेला ही है, अगर उसके साथ साथ कोई और चीज ऑब्जर्व नहीं है, दैट इट डज नॉट इंश्योर अ केमिकल चेंज, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर समटाइम्स चीजें जब मेल्ट हो रही है, तो आपने तो फ्रिज से निकाला रूम टेम्परेचर पे, ये हीट ट्रांसफर अपने आप भी होता है, बट ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस इफ चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। आप एक ही चीज की बात करो, अपने आइस को बाहर ओपन में रखा, वो एक फिजिकल चेंज है, आइस का मेल्ट होना, तो इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, क्योंकि वो फ्रिज में कम टेम्परेचर थी, अब आपने उसको बाहर रख दिया, फ्रिज में तो नहीं ना हो रही थी मेल्ट। तो इट्स नॉट दैट कि अपने आप ही किसी चीज का टेम्परेचर अगर हो रहा है चेंज, तो वो तो हीट ट्रांसफर है, उस चीज को हम केमिकल क्लासिफिकेशन में नहीं लाते। केमिकल दो मिक्स करने के बाद चेंज, वो केमिकल चेंज है, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो। फिजिकल जो चेंजेस, एक्सक्यूज मैम, मेल्टिंग हो गया, ही हो गया, इसमें तो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो चेंज आया टेम्परेचर में। एक्सक्यूज मैम, यस मैम अगर जैसे ड्राई लीव्स हम बर्न करते हैं तो फिर इनमें से ब्लैक स्मोक निकलती है, तो कैन वी से दैट ब्लैक स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्न हो रही है? स्पीक अगेन, आई डिडंट गेट। Ma'am, I said that when dry leaves are, for example, burned, then black smoke is produced. Whenever So can we say that carbon dioxide's color is changed? कार्बन डाइऑक्साइड का कलर तो चेंज नहीं होता, बट हाँ किसी भी चीज को बर्न करोगे तो उसका कलर चेंज है ही। तो बर्निंग, because on burning you can see the color of smoke as well, you can see the smoke rising and you can see the entire leftover ashes, that is quite different। तो इतने सारे चेंजेस आपको ऑब्जर्व हुए, वो तो है ही केमिकल चेंज ना। तो चेंज इन टेम्परेचर इज अदरवाइज अकर्ड इन आवर सराउंडिंग्स, जो आप जनरली ऐसे मैम समटाइम्स change यस rubbing से, रबिंग, yes ma'am, रबिंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैंने बताया ना आपको कई फिजिकल प्रोसेसेस में भी होता है। रबिंग से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड फ्रिक्शन
changes the temperature. तो temperature change आपने Ma'am, हाँ जी the rod evolves, the heating rod evolves heat when electricity is passed through it. When we used to heat the water. You all are giving examples of certain physical changes क्योंकि electricity is converting into heat energy. This is heat conversion. Heat का conversion एक form से दूसरे में होता रहता है. But you can say something कि आपने उसको electricity supply किया, flow of electrons is there and that is converted into it's a kind of heat transfer you can say. Chemically आप acids जितने भी हम use करते हैं, acids जब भी कभी किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं, आपके घर में भी जो मेटेलिक कंटेनर्स है, अगर आप उनमें कुछ अमाउंट में एसिड, नॉर्मली विनेगर भी रख दो, विनेगर से थोड़ा इतनी इजीली आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है. बट व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद एसिड्स, जनरली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, इतनी ज्यादा हीट होती है कि जैसे, और इवन मेटल्स जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स जो है अगर आप वाटर में डाल दो इनको तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व दैट द मेटल स्टार्ट्स कैचिंग फायर. ठीक है, और इस तरह के एग्जांपल्स जो है, जब आप कुछ चीजें आपस में मिक्स कर रहे हो और हीट इवॉल्व होती है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैसेस. एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, तो किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन अगर अर्थ पे हो रहा है, चाहे आपने कोई भी वेस्ट मटेरियल थ्रो किया, वो वेस्ट अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग ऑन इट्स ओन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड ऑलवेज गैसेस आर एस्केपिंग आउट. नाइट्रोजन भी इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होती है. तो और आप कभी अगर घर में कभी कंपोस्ट पिट वगैरह को ऑब्जर्व करते हो तो स्मेल आपको पता लगा देगी कि कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है जिसकी फाउल स्मेल. तो ये फाउल स्मेलिंग गैसेस आर रिजल्टिंग ऑफ डिकम्पोजिशन. तो स्मेल एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है गैसेस को आइडेंटिफाई करने का, बट हर एक गैस की कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, इसलिए हम स्मेल को क्राइटेरिया नहीं मान रहे हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द बेटर क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो ये जनरली हम कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऑब्जर्व करेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे फॉर्म में, आपको मैं एक्टिविटीज के साथ ही बता दूंगी. चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो सॉलिड से, उससे गैसेस इवॉल्व हुई, तो फिजिकल केमिकल चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व. मतलब फिजिकल चेंज आया सॉलिड से लिक्विड बनना अगर किसी में, या सॉलिड से गैसियस प्रोडक्ट बना. तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा आपको वो बता देती हूँ मैं. वी हैव 5 मिनट्स मोर. केमिकल चेंज तो आप डिफाइन कर सकते हो कि a kind of change in which a new substance is formed. कुछ नया बना है पुरानी प्रॉपर्टीज से, न्यू जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, तो दैट मीन्स वी कैन से अ केमिकल चेंज. एंड अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद a chemical reaction, or it can be, you can say that chemical changes are actually chemical reaction. उसी के लिए प्रोसेस को नेम हमने दे दिया कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक केमिकल चेंज नहीं होगा. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हमने मिक्स किया था टू फॉर्म वाटर. आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. हाइड्रोजन का फॉर्मूला वगैरह सबको पता है, वाटर का पता है. तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एंड यू नो हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन. और ये एटम जो कंबाइन होते हैं इनके बीच में ये केमिकल बॉन्ड है, तो दे आर बॉन्डेड विद दिस केमिकल बॉन्ड. कुछ अमाउंट में एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करके ये केमिकल बॉन्ड बने. देन ऑक्सीजन के बीच में भी केमिकल बॉन्ड है, ऑब्वियसली 2 एटम्स आर देयर. अब नया जो बन रहा है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल बना. वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्डेड है, HOH का बॉन्ड है. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये जो बॉन्ड था इन दोनों हाइड्रोजन में वो बॉन्ड नहीं है, मींस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. इधर ये 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, वहां पर तो एक ही रह गया. इसका मतलब भी ये है कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तभी एक ऑक्सीजन कम, मतलब वहां पर सिर्फ एक ही एटम कैसे आया, बिकॉज ये ब्रेक हुआ मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आया. मींस इट टेक्स प्लेस ऑलवेज, केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो दीज reactants are those substances which are
used to carry out a particular change. तो ये reactants जो जिनके अंदर ऑलरेडी जो केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, दे स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, वो बॉन्ड्स टूटते हैं पहले केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर, एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स स्टार्ट फॉर्मिंग. तो एक केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ यू कैन से प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म और रिजल्टिंग इन न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. सो अब क्या हुआ, जब केमिकल बॉन्ड्स नए बन गए, पुराने वाले टूट गए, तो नया अपने आप मॉलिक्यूल बन गया. आपको एक न्यू मॉलिक्यूल ही तो बनाना था. न्यू प्रोडक्ट मींस समथिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि एक एलिमेंट्री स्टेट जो है वो आप इस तरह से अपने आप ओरिजिनेट नहीं कर सकते. केमिकल रिएक्शंस में हम एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल या किसी मतलब न्यू एलिमेंट जो 117 है हमारे, वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस में. वी कैन प्रिपेयर सम कंपाउंड्स. ठीक है, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड न्यू. अब देखो केमिकल चेंज में आपको एक चीज मैंने बताई थी ना कि हीट हमेशा एसोसिएट होती है, कि हीट या तो इवॉल्व होगी या फिर यूज होगी. वो क्यों होता है? अब देखो हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड था, इसको, अब बॉन्ड का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन एटम इस तरह से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंबाइंड है, मतलब आप उनको ऐसे नहीं अलग कर सकते हो. यू नीड टू ब्रेक देम. और केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए हम बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे ना, अपने आप को एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड्स टूट जाते हैं. तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, H2 molecule, it will break out. Again, O2 will also break out in order to produce single O. तो दोनों एलिमेंट्स जो थे ये हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दे रिक्वायर एनर्जी टू यू कैन से ब्रेक. अब ये इतनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कि आप अगर आप ओपन में अभी आप कहो कि एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, दे विल नेवर रिएक्ट. आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो. यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी आर एडिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क हियर, क्योंकि हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता. ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपनली पड़ी हुई है, कभी उसके ऐसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते इजीली. ठीक है, तो इट ऑलवेज एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड्स टूटेंगे. और ये बॉन्ड जब टूटेंगे, फ्री एटम्स प्रोड्यूस होंगे. एंड यू नो दैट इन 9th क्लास वी हैव डन दैट एटम्स आर वेरी रिएक्टिव, बिकॉज उनकी जो लास्ट वैलेंस शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट है. अब वो उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आपस में कंबाइन हो रहा है. और अगर दो तरह के एटम्स प्रेजेंट हो गए, पहले तो ये सिंगल सिंगल थे ना, अलग अलग मिक्स कर दिया तो दो तरह के एटम्स आ गए क्योंकि ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. देन दे कैन कंबाइन इन सच अ वे कि उनसे भी ज्यादा स्टेबल कुछ बना पाए. ठीक है, उस रिएक्शन में जो आपने कंडीशंस प्रोवाइड की, तो अपने आप को फॉर्म हो गया. और इस फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ, जब नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है. यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई जो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, या आपको अगर एटमॉस्फेयर से नहीं मिल पा रही, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट करना पड़ेगा, या लाइट देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी. और न्यू जो मॉलिक्यूल बना वो हीट रिलीज करता है. तो ये जो हीट चेंजेस जितने टोटल आएगा ना ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करके, वो ही टेम्परेचर चेंज करता है. अगर ये ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है बनने के टाइम पे, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी, वो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हीट अप हो जाएगा, कंटेनर गर्म हो जाएगा. और अगर ये हीट एब्जॉर्ब करके बना है, तब इन्होंने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की एज कंपेयर टू द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन, तब क्या होगा कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट एब्जॉर्ब करके होगा. तो हीट चेंजेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड व्हेनेवर न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन. अभी एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, वो अभी वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. यहाँ पर दो ऑक्सीजन थे, यहाँ एक एटम कहाँ चले गए, that we'll discuss tomorrow. And I will ask you first of all why, where does this oxygen atom gone? Okay, so let's all about this.